ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. میرے دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے سوچ رکھا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، جبکہ تمہارے پاس ایسا وقت ایسا ٹائم نہیں آیا، مثل الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کے جیسا ٹائم جو تمہارے سے پہلے تھے، گزر گئے، مستهم البأساء، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، والضراء، مصیبتیں پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی، وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول تک بھی اپنی زبان سے کہنے لگا، والذین معہ، اور جو بھی ایمان والے تھے وہ بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، ہم لوگوں کے ہے ماں باپ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی مسلمان تکلیفاں ہم بولتے سو، مصیبتاں بولتے سو، پریشانیاں بولتے سو، یہ کیا بھی نہیں، باپ دادا سے الحمدللہ دین اسلام پر چلتے ہوئے آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ جنت پانا ہے بولے تو انسان ایمان پہ آنے کے بعد مصیبتاں پریشانیاں یہ کمپلسری، بغیر مصیبت پریشانیاں کے انسان جنت حاصل نہیں کر سکتا، بولنے کی بات مل رہی، کیسی بھی مصیبت ہو سکتی ہو۔ اب دیکھو خاص طور پر ہمارے انڈیا کے اندر CAA قانون لا کر ایک مصیبت سے دھندا بنا کر رکھا گیا ہے، خاص طور پر جو حکومت BJP ہے اس کو آج تک انہیں کیا بھی کام کر سکی نہیں، جو بھی تھا سب بیچ ڈالے، ریلوے بیچ ڈالے، سو کیا کیا تھا، LIC بیچ ڈالے، BSNL بیچ ڈالے، ہر ایک چیز بیچ ڈالے، کرنے کے واسطے لوگوں کے سامنے ووٹ مانگنا بولے تو صورت کیا بھی نہیں ہے، اب وہ صورت دکھانا بولے تو مسلمانوں کے دشمنا ہی ہیں، ان کو دکھانا شروع کرے CAA۔ اب یہ CAA کرتا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے علاوہ ہیں انہوں اگر ڈیٹ آف برتھ پروف نام میں تھوڑا بھی فرق نہیں سرگا لا کو دکھاتے، ان کو یہاں کا نگری یا یہاں کا شہری قرار دیا جائے گا، اور جو بھی ایسا نہیں رہتا ڈیٹ آف برتھ میں تھوڑا بہت غلط غلط آتا باپ کے نام میں یا اس کے نام میں، تو اس کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنا بولنے کی بات چل رہی ہے۔ ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی کہ یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو خصوصی ٹارگٹ کر کے اس طریقے سے کہنا، اس طریقے سے بولنا، گویا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑا کرنا، یہی معاملہ ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ آج تک ہندو مسلم مل جل کر رہا کرتے تھے، یہ RSS والے خاص طور پر گھر گھر جا کر محنت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار بھگانا، مسلمانوں کو مار بھگانا، مسلمانوں سے دشمنی کرنا، مسلمانوں کی دکانوں میں جا خریدنا نہیں، مسلمانوں سے لین دین رکھنا نہیں، دن رات ایش محنت کر لیتے ہوئے ہر ہندو بھائی کے برین کو واش کرتے جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ آج تک کیا ہے ہمارے سے نفرت نہیں کرنے والے بھی، ان کے بار بار برین واش کرنے کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کے اندر بھی ایسی نفرت پیدا کی جا رہی ہے، ایسا ماحول وفا کیا جا رہا ہے کہ مکمل طریقے سے مسلمان نہتے ہو جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں گے کچھ نہ ملے ان کو، نہ پاسپورٹ بنانے کے واسطے ملے تو پاسپورٹ ملے، نہ ڈرائیونگ لائسنس ملے، نہ کچھ اور ملے، ہر جگہ پر اپنے آدمی کو بٹھا کر خصوصی طور پر مصیبت کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتاتا ہے ایسے مصیبتاں پریشانیاں آئیں گی، یہ تمام مصیبتوں کو پریشانیوں کو دیکھ کر انسان گھبرا جانا نہیں، اسلام سے منہ موڑنا نہیں، انہوں جے شری رام بولو بولے تو ہم سے جے شری رام بولو نہیں بولنا ہے، خود رامڑوچ کیا بول کے بولتا ہے ان کے اس میں پرانا میں
जो कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा जो बातें हैं, तो रावण बोलता है कि मैं इबादत के लिए सुबह सवेरे उठता हूँ, फजर की नमाज के टाइम पे उठता हूँ और 7 हड्डियों के ऊपर सिजदा करता हूँ, तो उसको जाकर भगवान कैसे मान सकते हैं? उनकी खुद किताबें नहीं बताती कि ये भगवान है वो। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला क्या बताता है, मुसीबत परेशानियां मुल्कों मुसलमानों के ऊपर आएंगे, ऐसा आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है, जैसा भूखा आदमी दस्तरखान के ऊपर कैसा टूट पड़ता है कि वैसा मुसलमानों के ऊपर लोग मारने के वास्ते टूट पड़े, ऐसे हालात आए। सहाबा हैरान होकर पूछते, मुसलमान क्या तो तादाद में कम रहते क्या? आज इंडिया में 20 करोड़ के ऊपर है मुस्लिम आबादी, 20 करोड़ के ऊपर, 20 करोड़ से कम नहीं है मुसलमान। पाकिस्तान में भी उतने मुसलमान नहीं है जितना इंडिया के अंदर मुसलमान। तो बावजूद इतना ज्यादा होने के उनके दिल में वहन आ जाएगा। वहन वहन बोले तो ऐसी चीज है कि इंसान अपनी जिंदगी के वास्ते क्या करने वास्ते भी तैयार होगा। मिसाल के तौर पर वही सीपी में एक मुसलमान भाई है, समझिए मुसलमान आपस में एक मशवरा कर रहे हैं, ये मशवरा को सभी राजकीय नायकों को बोलना नहीं, हमारे अदना हमें सब जने मिलकर हमारे आदमी जिताना, उनको बातचीत चल रही है समझो। तो ऐसी सूरत में वैसीपी का नायकों जो हमारा मुसलमान भाई है, हमारे साथ ऐसा रहेगा, हाउ भाई मुसलमान के साथ अच्छा करना, लेकिन जैसे ही वहां चले जाता उनको जाकर लीक कर देता बात। कई क्लिक करता है भाई, वो सोचता होने शायद जगन मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए या उसकी तरफ से कुछ न कुछ इनाम मिलता। तो दुनिया की हिरिस और दुनिया की हवस इंसान के ऊपर ऐसा छा जाती, अपनी कौम के साथ गद्दारी करने में पीछे हटता। मुसलमान वहन को जब दिल के अंदर लाता है तो अपने अदमिया कुछ रोंदने की हत्ता के अपने सगे भाई माँ बाप इनको तक भी मुसीबत में डालने वास्ते आगे बढ़ जाता है। ऐसी चीज मुसलमानों के अंदर आती बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। अब ये तमाम चीजों को रखकर अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हालात ऐसे आने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है, ये तमाम चीजों में एक मुसलमान उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। दो चीजें रखा अल्लाह ताला, एक सबर के साथ सहते जाओ और दूसरी चीज कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुर्हुल लकुम, कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हद से बेहद हो जाए तो हाथ पे हाथ धरे बैठना तुम्हारे लिए जेब नहीं देता है। अक्सर लोग क्या करते होते, जब मुसीबत परेशानियां ज्यादा हो जाती तो क्या करते हैं, जहर लाकर पी लेते, नहीं बोले तो रेल के पटराइन के नीचे जाकर मर जाते, या नहीं बोले तो फांसी डाले के मर जाते। मुसलमानों को यह सब हराम करार दिया गया। एक मुसलमान बोलने के बाद सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये उसको जहन्नम में जाने की सर्टिफिकेट कहा गया। और जहन्नम भी ऐसा कि परमानेंट, फिर निकल कौन है, जन्नत नहीं आ सकता, चाहे तौहीद वाला भी रह दे। सुसाइड कर लिया वो समझो परमानेंट जहन्नमी, जैसा एक मुशरिक परमानेंट जहन्नमी है वैसा सुसाइड करने वाला भी परमानेंट जहन्नमी। तो सुसाइड करने की जगह में फिर पढ़ने का हुक्म देता अल्लाह ताला, उदीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिनके ऊपर जुल्म किया जाए, ना हक सताया जाए, जिनको ना हक रुलाया जाए, तो ऐसे लोग बाकायदा इनको इजाजत है कि अपनी जान बचाने के वास्ते, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देकर है कि सेल्फ डिफेंस के वास्ते किसी की जान भी ले ली जाए तो वो जुर्म नहीं है। 25 जने मिलको एक आदमी मारने वास्ते आते हैं तो अपनी जान बचाने के वास्ते उन्हें 4-5 आदमी मार डाला तो भी उसके ऊपर केस नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा कानून, हमारा लॉ हमारे को ये सिखाता है कि अपना डिफेंस में सामने आने वाले किसको होंगे भी मार सकते। इस बार 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को सिखा के रखे, क्या बोलकर, एक सहाबी आते आपको पूछते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी मुजरी जो दिन भर मेहनत कर को कमा को लेकर आ रहा हूँ, वो मुजरी लेकर आतिश को एक जना डाका डाल रहा है मेरे ऊपर और मुझसे कह रहा है कि पैसा तो तेरी मुजरी है, मेरे को दे डाल।
تو میں نہیں देती हूँ मेरे को बोला तो उन्हें मेरे को मारने वास्ते आ रहा है, तो मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तू भी उसको मार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि बाकायदा डिफेंस में तो उससे लड़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी पूछते अगर मेरे हाथ से उन्हें मर गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं है, तेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ताला गुनाह नहीं लिखेगा कि तू एक जने का मर्डर किया है, मर्डरर है तू, कातिल है तू, ऐसी बात अल्लाह तो उसने कहेगा। वो साहबी पूछते अगर उन्हें मेरे को कत्ल कर डाला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तेरा मकाम शहीद का मकाम हो जाएगा। बस समझ में आ रही? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमारे को बता दिए कि मामला ऐसा हो जाए कि तुम्हारे ऊपर जुल्म और ज्यादती आकर घेरा डाल दे तो ऐसी सूरत में अपने डिफेंस के वास्ते जो कर सकते हैं करना है। अब इस मामले में खुद इंतकाल कर गया तो शहादत का रुतबा है, नहीं सामने वाले को मार दिया तो ऐसी सूरत में कातिल या कत्ल के जुर्म में अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पकड़ने वाला नहीं है। बस समझ में आ गई? अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या बताता है? कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे लिए फर्ज करार दिया गया है लड़ना, वहुवा कुरहुल लकुम, हालांकि तुम में से बहुत सारे आदमियों को ये बात पसंद नहीं आती लड़ना क्या हो, और हमारे तो मर लेंगे और हमारे तो मारा खा लेंगे, ये मेंटालिटी हो सकती है। एक बोलते बुजदिली की मेंटालिटी एक कंपलसरी शैतान ला के बिठा देता मुसलमानों को खास तौर पर, और जिन लोगों के दिलों में वहन है इनको तो 100% बिठा देता। क्या बोलकर वहां को मारते हैं तो ये मारा खा लेंगे। जिस वक्त तातारी लोग हमला कर रहे थे मुसलमानों की हालत कैसी थी मालूम? तातारी आकर बोलता था मेरे हाथ में तलवार नहीं है, घर में है तलवार, तो हीट छोड़ो, मैं घर को जाको तलवार लेकर आपको तेरे को कत्ल कर दूं। तो उन्हें वहीं छोड़ता था, हल भी हलता नहीं था। कई को बोले तो शायद उन्हें तलवार लेकर आने के बाद मेरे ऊपर रहम करके छोड़ डालता यही। इतनी बुजदिली आई थी मुसलमान दिमागी लिहाज से इतना गुलामी की जहनीत बन गई थी कि वहां से हला रहे थे तभी उन्हें मेरे को छोड़ता नहीं। हले नहीं सर कर रहा तो छोड़ता है क्या? फिर भी आदमी अपने आप को इतना बुजदिल बना के खड़ा करके रखता था। कुछ जैसा वो कहानी है नहीं, शेर गई को बोलता मेरे तेरे खा ले तू, नहीं बोलती नहीं मेरे बच्चे हैं जाको दूध पिला को आती, दूध पिला को आती उन्हें। आने के बाद शेर क्या है तू वादे के ऊपर ठहरी है उस वास्ते क्या है तेरे को मैं माफ कर डालता हूँ, माफ कर डालता। वैसे इन्हों माफ करते हैं कि उनको ये मेंटालिटी, ये जहनी है, हालांकि उन्होंने है जुल्म और जबरदस्ती करने के वास्ते। तो उन लोगों से रहम की उम्मीद रखना, रहम की भीख मांगना, ये चीज कभी भी एक मुसलमान को शेवा देता नहीं, इज्जत देता नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला यही बात बोलता है वहुवा कुरहुल लकुम, बहुत मुमकिन है तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा लड़ना। असा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिसको तुम नापसंद करते होंगे लेकिन तुम्हारे लिए भलाई उसी में रखा है अल्लाह ने। वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी रखी गई हैं जिसको तुम पसंद करते हो लेकिन हकीकत में तुम्हारे लिए बुराई रखी गई है उसमें। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ये एक बात समझ गया बोले तो इंसान का दिमाग खुल जाता, मैच्योरिटी आ जाती है आदमी। ये एक बात को समझा दो क्या, वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तअलमून, तुम्हारे को कुछ भी खबर नहीं। मतलब क्या, हर जगह पर, हर मामले में, हर मौसम में, हर दिन, हर रात, हर लहजा, हर सेकंड अल्लाह के मोहताज। आदमी अपने बल पर, अपने ताकत पर कुछ भी कर सकता नहीं, वो दिया नहीं है अल्लाह ताला। हर वक्त, हर लहजा, हर सेकंड इंसान, खासतौर पर एक ईमान वाला अल्लाह का मोहताज, खदम खदम पे मोहताज है। कैसे सिचुएशन रहेंगे, कैसे हालत रहेंगे, कैसे मामलात भी रहेंगे, हर जगह पर अल्लाह का मोहताज है। तो ये मोहताजी से बेनियाजी हरगिज नहीं बरती जा सकती। तो अल्लाह ताला क्या बोलता है हमारे से, ये जो मामला है तुम्हारा, हर कदम पे तुम्हें जब मेरे मोहताज हैं तो मेरा जो हक है वो अदा करो। हक अदा करने की बात आई बोले तो नहीं,
मुसीबत परेशानी है वो तो पहले आती है हमें। हमारा मसला कैसा है, बोले तो मुसीबत आई परेशानी आई तो अल्लाह याद आ रहा है। काफिरा भी ऐसे थे, काफिरा जो मक्का के थे, अल्लाह ताला इनके बारे में बताता, कश्ती में सवार होकर जाते थे, जाते टाइम को जब भी तूफान आता या भंवर आ जाता तो उस टाइम को उनको यकीन हो जाता कि हमें मरने वाले। तो वो टाइम को उन्होंने मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के अलावा दूसरा कौन याद आता नहीं, अल्लाह को अकेला मानकर इबादत करते और बोलते हुए ऐ अल्लाह तो हमारे को बचा लिया तो हमें तेरे परस्तार बन जाते। अल्लाह जैसे ही बताता फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर्रि अअरज़्तुम, भैंस क्या है, मैं आते टाइम को मेरे सामने से फलां आए थे या मैं निकलने से पहले घर में फलां देवू को एक रहा था, ऐसी मेंटालिटी ला डाल। तो मुशरिका भी ऐसे जैसा आज हम लोग रवैया इख्तियार कर रहे हैं अल्लाह के मामले। तो मेरे दीनी भाइयों, खुलासा कलाम यही है कि हालात जैसे कैसे भी क्यों ना हो, एक ईमान वाला, एक मुसलमान हर वक्त अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ के रखता है, कभी भी अल्लाह ताला से कनेक्शन टूटने देता नहीं। जो नेटवर्क है अपना हमेशा राब्ते में रहता अल्लाह ताला, कदम कदम पे हर जगह पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसकी जबान पर रहती है जो कनेक्शन अल्लाह से जोड़े रखती है। तो यही चीज हम लोगों के अंदर भी हमेशा पायदारी के साथ, इस्तिकामत के साथ होने की सख्त जरूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, परवरदिगारा कहने वाले को कहने से ज्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह जो भी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाए जाते हैं, ऐ अल्लाह तमाम प्रोपेगेंडे को नाकाम और नामुराद बना। ऐ अल्लाह जो भी इस्लाम और मुसलमान से दुश्मनी रखते हैं, परवरदिगारा उनको मुसलमान बना दे और उनको इस्लाम की हिदायत नसीब फरमा। अगर वो लोग हिदायत के काबिल न हो या उनके हक में हिदायत ना लिखी गई हो तो अल्लाह उनका मामला उनके ऊपर ही फेर दे। अल्लाह उनके लिए तू काफी हो जा। अल्लाह जब तक हम लोगों को दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जो मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। आमीन या अरहम अर्राहिमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।